Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss about permanent maxillary first premolar. 8 premolars are found in the permanent dentition with 4 per arch and 2 in each quadrant. They are located in the 4th and 5th position from the midline, which replaces them between the canine and molars. The premolars are designated as first premolar and second premolar by noting their position relatively to the midline, with the first premolar is closest one. Along with the premolars comprises of group of teeth collectively refers to as posterior teeth. As previously indicated, major anatomical and functional differences exist between the posterior teeth and the anterior teeth. It is also called cuspid tooth because this tooth signifies two cusps. Maxillary first and second premolar are much more similar to each other than are the mandibular premolar. In the maxillary arch, the first premolar is generally a little larger than the second premolar, while in the mandible, the first premolar is considerably smaller one. The crown of the maxillary premolars are normally wider buccolingually than mesiodistally, while the mandibular premolars buccolingual and mesiodistal crown dimensions are approximately equal or same. The maxillary first premolar is the only permanent premolars which normally exhibits 2 root branches, while other teeth may exhibit single root. Now, general characteristics. The maxillary first premolar is the 4th permanent tooth from the midline. It has a mesial contact with the permanent maxillary canine and the distal contact with the second premolar. It replaces the deciduous maxillary first molar and it is a succedaneous tooth. And succedaneous tooth आप सबको पता है कि वो tooth जो कि वो counterpart जो कि अपने deciduous counterpart को replace कर जाए. Tooth numbering. So this is the tooth numbering of maxillary first premolar. General form and function. The outline from the occlusal aspect roughly resembles a hexagonal, while the general shape from the proximal aspects it is trapezoidal. The first premolar exhibits 2 very similar cusps plus 2 root branches in the majority specimen. Majority specimen में जो maxillary first premolar है इसमें 2 cusp होते हैं, इसलिए इसको bicuspid कहा जाता है, and 2 root branches होते हैं in the majority specimen क्योंकि other teeth में single roots होते हैं. Other teeth means other maxillary premolars normally majority specimen में single root exhibit करते हैं. In mastication, the first premolar function basically as a grinding tooth and contributes to the aesthetic and phonetics role as well. क्योंकि function हम कहते हैं कि it is intermediate tooth, means it is near to the anterior as well as to the posterior, और उसी के दरमियान ये tooth lie करता है. जिस तरह के इसकी shape resembles करती है प्रीमोलर्स के साथ भी, इसका शेप रिजेंबल्स करती है कैनाइन के साथ भी, सो उसका फंक्शन भी फिर इंटरमीडिएट ही होगा. सेम लाइक जिस तरह के कैनाइन के पियर्सिंग टीयरिंग ये फंक्शन है, इस तरह ये भी वो फंक्शन प्रोवाइड करता है. एंड साथ साथ ये ग्राइंडिंग मीन्स की जिस तरह के प्रीमोलर का मेन फंक्शन जो है वो ग्राइंडिंग है, तो ये ग्राइंडिंग फंक्शन भी प्रोवाइड करता है. इन एस्थेटिक एंड फोनेटिक्स में भी उसका लिटिल बिट रोल है, बट ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पोस्टीरियर टीथ, क्योंकि एस्थेटिक में ज़्यादातर हम एंटीरियर टीथ को कंसिडर करते हैं. डेवलपमेंटल टेबल जिस तरह के हम हर एक इंडिविजुअल टूथ में डिस्कस करते हैं, सेम लाइक दिस इज द डेवलपमेंटल टेबल ऑफ द maxillary first premolar. Buccal aspect. From the facial aspect, the pentagonally shaped crown bears a close resemblance to those of both maxillary canine and second premolar, क्योंकि हमने कहा था कि it is like intermediate tooth, like it resembles to the anterior means canine as well as to the posterior second premolar or molar. तो उसका जो शेप है बकल फॉर्म में ये पेंटागोनल है. Mesial margins. The mesial margin joins the mesoocclusal slope to create an obtuse mesoincisal angle.
The contour of the mesial outline shalvely concave from the contact area to the cervical line. अब आप देख ले इस साइड पे जो मेजल आउटलाइन है इसका बकल एस्पेक्ट का, एक तो इसका जो एंगल है ये एब्ट्यूज एंगल बनता है, ठीक है, एब्ट्यूज एंगल। दूसरी बात यहाँ पर शैलो कंकेविटी ये प्रोवाइड करती है मेजल मार्जिन पे टू द सर्वाइकल लाइन, फ्रॉम द कंट्रिक एरिया से लेकर टू द सर्वाइकल लाइन तक ये कंकेविटी एग्जिबिट करती है। डिस्टल मार्जिन बकल एस्पेक्ट का, द डिस्टल इज स्लाइटली शॉर्टर बट अदरवाइज इज मच द सेम एज द मेजल मार्जिन, बट द डिस्टो अक्लूजल एंगल इज लिटिल लेस प्रोमिनेंट। देखिए हमारे पास जो डिस्टल एंगल है ये बिल्कुल सेम, डिस्टल मार्जिन ये शॉर्टर है एंड इसका जो एंगल है ये लेस प्रोमिनेंट है, एंड ड्यू टू दिस लेस प्रोमिनेंसी यहाँ पर इसका जो डिस्टल मार्जिन है वो शॉर्टर रह जाता है। अक्लूजल आउटलाइन, द फेशियल कस्प टिप इज प्रोनाउंस्ड although it is not as prominent as in the maxillary canine. मैक्सिलरी कैनाइन में जिस तरह की कस्प टिप प्रोमिनेंट है, सेम लाइक यहाँ पर मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में प्रोमिनेंट नहीं है, बट स्टिल अगर हम प्रीमोलर्स को इसकी कस्प के लिहाज से या इंडिविजुअल एडजेसेंट टूथ के लिहाज से अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर ले या उसके साथ कंपेयर कर ले तो ये प्रोनाउंस्ड होते हैं। The cusp tip divides the occlusal outline into two equal portions. The mesial occlusal is longer and straight while the disto-occlusal slope is shorter and curved. अभी जो cusp tip है, the cusp tip, this cusp tip, इसने इसको two portion में divide किया है। इसका जो mesio-occlusal है slope है ये larger है and इसका जो distal-occlusal slope है ये shorter है। Cervical outline, the cemento-enamel junction is relatively convex toward the apex, but the depth of curvature is generally less than that of found in the anterior teeth. तो उसकी जो depth होगी वो less होगी, but alwaysly जो buccal and lingual outlines पे अगर हम देख ले या buccal and lingual aspect पे स्पेशली हम देख ले तो cervical outline ये posterior teeth में ये curve होगी toward the apex, and जो proximal aspects हैं उस पे वो curve होगी toward the occlusal. Lingual aspect, the lingual surface of the crown is smoothly convex in all direction. There is no clearly defined lingual ridges, कोई identified ridges इस पे नहीं होते lingual aspect में। The crown tapers toward the lingual, so the tooth is narrow mesiodistally at the lingual then at the buccal. अब देखिए इसके जो crown होगा वो buccal से जाके lingual की तरफ ये कन्वर्ज होती है, तो ड्यू टू दिस कन्वर्जेंस इसका जो मीजियो डिस्टल डायमेंशन रह जाती है लिंगुअल एस्पेक्ट का वो नैरो हो जाती है, वो कम हो जाती है और बकल पे वो इंक्रीज होता है। वो क्यों नैरो हो जाती है? क्योंकि बकल एस्पेक्ट से ये टूथ कन्वर्ज होता है टुवर्ड्स द लिंगुअल। सिंस द लिंगुअल कस्प इज शॉर्टर देन द बकल कस्प, द टिप ऑफ बोथ आर विजिबल फ्रॉम द लिंगुअल एस्पेक्ट। क्योंकि जो लिंगुअल कस्प है ये शॉर्टर है इट्स कंपेयर टू द बकल कस्प, तो मेजॉरिटी ऑफ दी सर्फेसेस जो लिंगुअल एस्पेक्ट से आप देखेंगे तो वो विजिबल नजर आएगी। आप ये भी कह सकते हैं कि बकल कस्प टिप इज विजिबल फ्रॉम द लिंगुअल एस्पेक्ट, क्लियरली आपको डिफाइनली नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि लिंगुअल कस्प टिप शॉर्टर है और ये कस्प भी टोटली शॉर्टर होता है। occlusal outline, the lingual cusp tip is not as sharply pointed as the buccal cusp, as जिस तरह के हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। इट इज ऑपोजिट टुवर्ड द मीजियल मेकिंग द मीजियो अक्लूजल स्लोप शॉर्टर देन द डिस्टो अक्लूजल स्लोप। डेफिनेटली बात है कि जिस साइड पे वो ऑपोजिट होगा वो स्लोप शॉर्टर रह जाएगा और जिस अगेंस्ट द ऑपोजिट लार्जर रह जाएगा। तो इसका जो मीजियो अक्लूजल स्लोप होगा वो शॉर्टर होगा एंड डिस्टो अक्लूजल स्लोप वो लार्जर होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कस्प टिप है आप देख सकते हैं कि इट इज ऑपोजिट टुवर्ड द मीजियल। सर्वाइकल आउटलाइन, द सर्वाइकल लाइन इज कर्व्ड सिमेट्रिकली टुवर्ड द एपेक्स। नो डेवलपमेंटल डिप्रेशन ग्रूव्स और पिट्स आर नॉर्मली फाउंड ऑन द सरफेस। बिल्कुल जिस तरह के हमने डिस्कस किया कि सर्वाइकल लाइन जो होगा वो कर्व्ड होगा, सिमेट्रिकल होगा एंड टुवर्ड्स द एपेक्स होगा। Mesial aspect,
The general shape of the mesial surface is trapezoidal with the longer parallel sides located at the cervical. Long parallel sides के साथ वो होगा, बट अब जो लॉन्ग पैरेलल साइड्स हैं इसमें कन्वेक्सिटी कंकेविटी अलग चीज़ है, बट सेम ये ट्रेपेजॉइडल शेप प्रोवाइड करता है. बकल मार्जिन. द बकल आउटलाइन इज जनरली कन्वेक्स विद द हाइट ऑफ कंटूर इन द सर्वाइकल थर्ड. कन्वेक्स है एंड जो हाइट ऑफ कंटूर होगा वो सर्वाइकल थर्ड में बनेगा. सेम लाइक अगर हम लिंगुअल मार्जिन को देख लें तो लिंगुअली द आउटलाइन टेक्स द फॉर्म ऑफ एन इवन आर्क विद द हाइट ऑफ कंटूर इन द लोकेटेड इन द मिडिल थर्ड. वहां पर सिर्फ जनरली कन्वेक्सिटी थी, यहाँ पर इट प्रोवाइड्स एन आर्च शेप. उस आर्च शेप की वजह से उसका जो हाइट ऑफ कंटूर होगा वो मिडिल थर्ड में बनेगा. अक्लूजल मार्जिन. द अक्लूजल मार्जिन इज इरेगुलर, concave and in the majority of it is made up of mesial marginal ridge. क्योंकि mesial aspect का है तो definitely इसका जो occlusal margin होगा उसमें mesial margin prominent होगा, क्योंकि we are studying the mesial aspect, so definitely यहाँ पर majority of the occlusal margin वो develop होगा by the mesial marginal ridge. Cervical margin. The cervical line is almost often irregularly convex toward the occlusal due to the mesial concavity, but on occasionally specimen it has an even convexity. Cervical margin की अगर हम बात कर ले तो उसमें concavity and convexity both हो सकती है, but it is अगर हम देख ले तो ये lines curved होती है toward the occlusal. अगर हम देख ले तो ये line curved होती है toward the occlusal. देखिए एक simple concept है. अगर पोस्टीरियर टीथ में अगर हम बकल एंड लिंगुअल एस्पेक्ट को देखेंगे तो उसका जो सर्वाइकल लाइन होगा वो कर्व होगा टुवर्ड द एपेक्स. अगर हम उसके प्रॉक्सिमल मींस मीजल एंड डिस्टल एस्पेक्ट देखेंगे तो वो कर्व होगी टुवर्ड द अक्लूजल. सिंपल कॉन्सेप्ट है. डिस्टल एस्पेक्ट. द डिस्टल इज रिमार्केबली सिमिलर टू द मैक्सिलरी सरफेस ऑल्दो इट इज स्लाइटली शॉर्टर अक्लूजल सर्वाइकली. अक्लूजल सर्वाइकली ये लिटिल बिट शॉर्टर होता है, अदरवाइज ये डिस्टल एस्पेक्ट मीजल एस्पेक्ट के साथ क्लोजली रिजेंबल्स करता है. बकल मार्जिन अगर हम उसका स्टडी कर ले, द बकल लाइन इज कन्वेक्स थ्रूआउट इट्स लेंथ विद द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर इन द जिंजिवल थर्ड. जिस तरह के उसका भी सर्वाइकल थर्ड में था और जिंजिवल थर्ड में, यहाँ पर भी जिंजिवल थर्ड में है. एंड सेम लाइक इसका जो मीजल मार्जिन है ये भी सिमेट्रिकल है एंड सेम उसमें मिडिल थर्ड में भी उसका जो हाइट ऑफ कंटूर है वो लोकेटेड है बिकॉज ऑफ द आर्च सिचुएशन. जिस तरह के एक इवन आर्च डेवलप हुआ करता था मीजल पे, वह सेम लाइक डिस्टल पे भी है. अक्लूजल मार्जिन. अक्लूजली द डिस्टल इज सिमिलर टू द मीजल एस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट the marginal ridge is located at a more cervical level, allowing more of the occlusal surface to the visible. अब देखिए अगर हम occlusal margin को देख ले, वहां पर जो occlusal margin हम मीजल एस्पेक्ट पे डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर जो मीजल marginal ridge थी वो मोर प्रोमिनेंट थी, यहाँ पर वो मोर प्रोमिनेंट नहीं है एंड इट इज लोकेटेड लिटिल बिट सर्वाइकली. तो इसलिए मोर ऑफ द occlusal surface can be easily visible from this aspect. There is normally no marginal grooves. Marginal grooves यहाँ पर located नहीं होता. The distal contact area is larger than the mesial and is located at a slightly more cervical level but still at the junction of the occlusal and middle third. इसका जो contact area होगा वो occlusal and middle third पे बनेगा, क्योंकि हमने कहा था कि जिस तरह हम posterior की तरफ जाएंगे तो ये more cervically आएगा, तो ये occlusal and middle third पे इसका जो contact area है वो develop होता है. Occlusal aspect. From the occlusal aspect, the outline of the crown can be described as hexagonal, six-sided, and it is wider buccolingually than mesiodistally. देखिए buccolingually ये टूथ हमारे पास wider होता है. एक तो है इसका shape simply hexagonal and it is wider buccolingually than mesiodistally. ये क्यों? Because the tooth is converge from the buccal towards the lingual. ज्यादातर इसमें कन्वर्जेंस होती है. इस कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पर ये एस्पेक्ट या ये डायमेंशन शॉर्टर रह जाता है एंड ये डायमेंशन लार्जर होता है. बकल आउटलाइन. अगर हम इसका बकल आउटलाइन पढ़े तो बकल आउटलाइन और यू कैन से द बकल रिज इज प्राइमरली कंट्रीब्यूटर टू द जनरली कन्वेक्स बकल आउटलाइन. बकल रिज है, इस बकल रिज की वजह से यहाँ पर एक प्रॉपरली कन्वेक्सिटी डेवलप हो गई है प्रॉपरली, ठीक है, इसकी वजह से.
एंड लिंगुअल मार्जिन पे द लिंगुअल मार्जिन इज इवनली कन्वेक्स ऑलमोस्ट इन अ सेमी सर्कुलर। जो लिंगुअल मार्जिन है, लिंगुअल मार्जिन सेमी सर्कुलर फॉर्म में शॉर्टर है एंड कन्वेक्स है ये भी, बट सेमी सर्कुलर फॉर्म में। Mesial and distal margins. The two proximal margins are relatively straight and they converge toward the lingual. Thus the lingual portion of the tooth is narrow mesiodistally than the buccal portion. जिस तरह के हमने previous slide में डिस्कस किया कि the tooth is converged toward the lingual, तो उसका जो mesiodistally अगर हम देख ले तो lingual portion इसका shorter रह जाता है, you can say narrow रह जाता है, एंड इसका जो बकल एस्पेक्ट है या बकल पोर्शन है वो वाइडर रह जाता है mesiodistally. Boundaries. The occlusal surface or occlusal table is bounded on the mesial and distal by the marginal ridges and on the buccal and lingual by the mesial and distal cusp ridges of the buccal and lingual cusp. इसकी बाउंड्रीज बड़ी सिंपल है. अब देखिए जो बाउंड्रीज है occlusal surface की वो ये है कि proximal एस्पेक्ट्स पे मीजियल एंड डिस्टल साइड पे इसको मार्जिनल रिजेस बाउंड करता है एंड लिंगुअल एंड बकल साइड पे इसकी जो कस्प रिज है वो बाउंड करते हैं. तो इसकी बाउंड्रीज है. कंपोनेंट्स ऑफ द ओक्लूजल टेबल. कस्प होते हैं इसमें, नॉर्मली 2 कस्प होते हैं और उसको नेम भी उसके लोकेशन के मुताबिक देते हैं, जैसे कि बकल कस्प एंड लिंगुअल कस्प. द बकल कस्प इज नॉर्मली शार्पर, लॉन्गर एंड बल्कियर, जिस तरह के हम हर एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट में डिस्कस किया. Buccal cusp. The buccal cusp tip is located well toward the buccal and is opposite toward the distal, and it is wider and higher than the lingual cusp. The buccal cusp has 4 inclined planes and 4 cusp ridges, and they are named according to the direction they extend from the cusp tip. जिस तरह के है 4 inclined plane हैं, 4 cuspal ridges हैं. इसमें 4 में इसको डायरेक्शन के मुताबिक, उसके लोकेशन के मुताबिक उसको नाम दिया जाता है, जिस तरह के बकल कस्प रिज, लिंगुअल कस्प रिज, मीजियल कस्प रिज, डिस्टल कस्प रिज. लिंगुअल कस्प. द लिंगुअल कस्प टिप इज लोकेटेड वेल टुवर्ड द लिंगुअल एंड इज ऑपोजिट टुवर्ड द मीजियल. हमने इंडिविजुअल साइड में भी उसकी मार्जिन्स में भी डिस्कस किया था कि जो लिंगुअल कस्प है ये ऑपोजिट है टुवर्ड द मीजियल. तो इसलिए जो मीजो ओक्लूजल स्लोप था वो शॉर्टर होता था एंड डिस्टल ओक्लूजल स्लोप लार्जर होता था. इट इज जनरली स्मॉलर एंड रोडेड देन द बकल कस्प. ये कस्प जो होगा वो बकल कस्प से शॉर्टर भी होगा, स्मॉलर भी होगा, राउंडेड भी होगा, जबकि इसके बकल कस्प बल्कियर भी है, हायर भी है एंड मोर प्रोनाउंस भी है. इट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द मैक्सिलरी प्रीमोलर कस्प. ऑल मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में आप देख ले तो ये शॉर्टेस्ट कस्प है. It has 4 cuspal ridges and 4 inclined planes which are located and named in the same manner as those for the buccal cusp. Since the lingual cusp is in function on both buccal and lingual, it would seems that all 4 of the inclined planes would be functional. यहाँ पर सारे के सारे inclined planes जो होंगे वो functional होंगे. Transverse ridges इसमें होते हैं, इसके अलावा marginal ridges होते हैं. ठीक है. Transverse ridges, the buccal and lingual triangular ridges of the tooth meets in an area of the central groove, thus forming a transverse ridge. जहाँ पर हमारे पास buccal and lingual triangular ridges हैं वो meet कर जाते हैं in the area of central groove, उसको हम transverse ridge कहते हैं. Marginal ridges, unlike the marginal ridges of the anterior teeth, those of the posterior teeth form the mesial and distal border of the occlusal surface. इस तरह के यहाँ पर हैं marginal ridges. Distal and mesial developmental pits भी present होते हैं. Fossa. Maxillary premolars normally display 2 of them. Mesial triangular fossa इसमें होते हैं and distal triangular fossa. So mesial triangular fossa उसकी dip भी ज़्यादा होती हैं and it is bounded by different marginal ridges, while distal marginal fossa it has a shape and boundaries which are similar to those of the mesial triangular fossa, although it is not quite so deep. Mesial triangular fossa वो dip उसकी dip ज़्यादा होती है while distal triangular fossa की dip कम होती है, जिस तरह की इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है. Root. The tooth structure of the maxillary first premolar is unique among premolars. Since there are 2
branches in a majority of cases, while all other premolars are normally single rooted, जिस तरह कि हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था. Even though 2 roots are most commonly found in this tooth, there are 3 identified root types. 3 किस्म के इसमें आते हैं रूट टाइप्स. एक है सिंगल रूटेड, ये जो उसमें वेरिएशंस आती है ना, सिंगल रूटेड भी हो सकती है, बाइफोर्केटेड एंड लैमिनेटेड रूट. सिंगल रूटेड तो सिंपली एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है. बाइफोर्केटेड रूट मींस कि ये सर्वाइकल लाइन से एडजस्ट इमीडिएटली ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. एंड टाइप 3 मींस लैमिनेटेड रूट. तो इस डायग्राम में ये आपको दिखाया गया कि इट इज लैमिनेटेड रूट, क्योंकि ये सर्वाइकल लाइन के साथ बिल्कुल इमीडिएटली बाइफोर्केट नहीं हुआ. इट इज डिवाइडेड बाई आर, इट इज अटैच्ड बाई अ लैमिनेटेड शीट. इसके दरमियान एक लैमिनेटेड शीट लाइक होता है, इसकी वजह से ये बाउंड होता है. एंड लेटर ऑन एपिकली ये फिर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है. Concise dental anatomy and morphology by James Fuller, a permanent maxillary first premolar. All contents are taken from this book. Thank you very much. That was a session about maxillary first premolar.